सांप भी बच सकता है। I am honored welcome to everyone present here on a special occasion of our school, that is farewell. We gather here to celebrate this time, memory and contribution for our seniors who are moving on to new journey. Now let's start. A farewell is not just about saying goodbye, it's about memory, and the moment you have shared, the louder each one of you has left it, and it didn't mark your presence here, we always remembered. Wow, what a marvelous speech! As we enjoy this great story, memory, and let us also experience so much. बहुत शानदार शिवा, आपने नेक्स्ट प्रोग्राम आप सबके सामने प्यारे दोस्तों, मेरा आप सबको दोपहर का नमस्कार। मैं नूर फातिमा कक्षा 8वीं की छात्र आज आप सबके सामने इस शुभ अवसर पर कुछ शब्द रखने जा रही हूँ। आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही स्पेशल है। हमारे एनुअल फंक्शन का जश्न भी है और साथ ही फेयरवेल का वो पल जहाँ खुशी के साथ साथ थोड़ी नमी भी होती है। एनुअल फंक्शन हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करते बल्कि स्टेज पर अपनी टैलेंट, टीम वर्क और कॉन्फिडेंस भी दिखाते हैं। यह फंक्शन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक सेलिब्रेशन है हमारी ग्रोथ का। डियर सीनियर्स, आप नए सपने, नए गोल्स की तरफ जा रहे हैं। हम आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेष देते हैं। मैं टीचर्स के लिए कुछ दिन से कहना चाहती हूँ, डियर टीचर्स, आप सिर्फ टीचर्स नहीं बल्कि हमारे मेंटोर और सेकंड पेरेंट्स हो। आपने सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया बल्कि डिसिप्लिन, वैल्यूज और लाइफ लेसन्स भी दिए। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि यह फेयरवेल एक गुड बाय नहीं बल्कि न्यू बिगिनिंग है और एनुअल फंक्शन हमें याद दिलाता है कि हर एंडिंग के साथ एक सेलिब्रेशन बनता है। थैंक यू सो मच टू लिसनिंग मी एंड हैव अ वंडरफुल डे। गोइंग टू स्पेल शायरी। कोई रोके तो कभी रुकना नहीं, जिंदगी में किसी के आगे झुकना नहीं। कोई रोके तो कभी रुकना नहीं, जिंदगी में किसी के आगे झुकना नहीं। चाहे नींदें पूरी हो या ना हो, मेहनत करने से मुंह मोड़ना नहीं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। वाह, व्हाट अ लाइन! मेहनत इतनी करो कि चर्चे सरेआम हो जाए, मेहनत इतनी करो कि चर्चे सरेआम हो जाए और खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग जहाँ तुम्हारा नाम ले वहाँ उनका काम हो जाए। ये बच्चे सभी ऑडियंस को हंसाने का काम कर रहे थे। Good afternoon, everyone. I am Hifsa Parveen from class 9. First of all, I am honored to welcome everyone present here today on this special occasion of our school, that is farewell. I want to tell you a story today, not just any story, but a story about success. Everyone wants success and everyone talk about success, but very few people really understand what it takes to achieve it. Something it is about intelligence, others believe it is about luck. Many assume that success is just about working hard. But today I want to tell you a very simple rule for success: never give up. I know it sounds so simple, maybe you have heard this before, but let me tell you why this rule is the foundation of everything. Let me take you on a journey from my own life. I have learned to prove to you, if you never give up, you will succeed. When I was in class 7, I used to try sketch and everyone throws me, "What are you doing this? You have to focus on your study." But I never give up. Now everyone likes my sketch. There are no secret for success. It is the hard work and learning from failure. Think of Thomas Edison, the man who invented light bulb. He failed thousands of times before he succeeded. If he given up after first few failure, we still might be living in darkness. There are 6 ethics of life. Before you pray, you have to believe. Before you speak, you have to listen. Before you kick, you have to try. Losers quit when they fail, and the toppers. और मेरे प्यारे दोस्तों को हमारी तरफ से चैलाफार नमस्कार, और मेरे प्यारे टीचर्स को खूनखार नमस्कार, और मेरे भाइयों को धुआंधार नमस्कार। पेश है आप सबकी खिदमत में एक महान कव्वाल समीर फतेह अली खान। हाँ, वो बात अलग है, इससे पहले आपने इनका नाम कभी नहीं सुना होगा। ये एक ऐसे कव्वाल है, जब कव्वाली गाते हैं तो लोगों के किडनी में अटैक आ जाता है और दिल के साथ दिल के फेफड़े बाहर आ जाते हैं। पेश है समीर फतेह अली खान।
खूब फैल गई बात पिटाई की, सर ने डंडों से मेरी खूब धुलाई की। मैं ये कैसे कह दूं कि मुझको पीटा है सर ने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। और ये आप टीचर्स के लिए, क्या तुझको जहां वाले सितमगर नहीं कहते? कहते तो है लेकिन तेरे मुंह पर नहीं कहते। स्टूडेंट्स तो कहते तो हैं लेकिन तेरे मुंह पर नहीं कहते। उम्र लेक्चर में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हमें पढ़ाई की फिक्र हो ये जरूरी तो नहीं। उम्र लेक्चर में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हमें पढ़ाई की फिक्र हो ये जरूरी तो नहीं। पढ़ाई को खेल इन निकम्मों ने समझ रखा है। किन निकम्मों ने? इन निकम्मों ने पढ़ाई को खेल इन निकम्मों ने समझ रखा है। इनको मैथ्स का डर हो ये जरूरी तो नहीं। टीचर का गुस्सा ना लगता है, स्टूडेंट्स का तो दिल दीवाना लगता है। टीचर का गुस्सा डरावना लगता है, स्टूडेंट्स का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं लेक्चर, पल भर में कैसे बदलते हैं लेक्चर। अब तो हर पीरियड फसाना लगता है, स्टूडेंट का गुस्सा डरावना लगता है, स्टूडेंट्स का तो दिल दीवाना लगता है। नए न्यूमेरिकल नए लेक्चर नए थ्योरम, नए न्यूमेरिकल नए लेक्चर नए थ्योरम, नए नए डेमो नए टीचर नए उलझन। नए न्यूमेरिकल नए लेक्चर नए थ्योरम, नए नए डेमो नए टीचर नए उलझन। अब तो पागल सा जमाना लगता है, स्टूडेंट्स का तो दिल दीवाना लगता है। मनमिंदर सर ने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाई थी। शुरू में मुझे समझ नहीं आया पीरियोडिक टेबल, तो याद देगा। और तुझे तो बिल्कुल बल भी मत करना। आइए सर आइए। तुमसे सवाल पूछेंगे। मान लो तुम्हारे पास 12 केला है, 2 आम को दे दिए, तुम्हारे पास कितना केला बचा? कैसे मान लो जब उसके पास केला ही नहीं है? अरे मान लो ना इसके पास 12 केला है। कैसे मान लो जब उसके पास केला ही नहीं है? अरे मान लो इसके पास 12 केला है। अरे कैसे मान लो जब उसके पास केला ही नहीं है? तुम बड़ा बीच में बक बक बोल रहे हो, खड़ा हो जाओ तुम। आप सबसे सवाल पूछते हैं, हम आपसे सवाल पूछेंगे। अरे रिपोर्टर से कोई वाला सवाल पूछता है? आप कोई का प्रधानमंत्री है का? अच्छा चलो पूछो। मान लीजिए हम आपको 10 रुपए दिए। हाँ मान लिए। मान लिए ना? या हम मान लिए। मान लिए ना? हाँ मान लिए। दे दीजिए सर, जितना हराम नहीं है सर, इससे हराम इसका बाप है। दे तो बच्चों आज मेरा मूड बहुत बढ़िया है। आपके क्लास में सबसे बढ़िया गाना कौन गाता है? गा दोगे जरा? क्रिस के गाने सुनेगा? क्रिस का दिल ना दिया दिल ना लिया, बोलो ना बोलो का किया। ले बेटा आगे दुनिया में भी अगर पढ़ाई ना किया तो का किया। ले बेटा बहुत बढ़िया गाना गा रहे बेटा। पक्का अगले साल तो मिल। तो बच्चों
हम सबके स्कूल में हमारे पधार चुके हैं। डायरेक्टर सर से निवेदन है, प्रिंसिपल सर से निवेदन है, Dear all the students, a huge round of applause for राजन शुक्ला सर। आप सब सर का मालाओं के द्वारा स्वागत करें। राजन शुक्ला जी जिला पंचायत सदस्य, हम लोग के बीच में इंजीनियर अजमत हुसैन जो इस कॉलेज के करीब फातिमा के कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने मालार्पण किया। इसके लिए अरे सर आप है सर, आपका तो 1 साल का फीस जमा है। बैठिए बैठिए। रोल नंबर 3 लॉकडाउन, तुम्हारा फीस क्या नहीं जमा है? 5 महीने का फीस जमा है। सर जमा कर देंगे। कब जमा करोगे? सर कल जमा कर देंगे। कल पक्का जमा कर दोगे ना? पक्का सर। बैठो बैठो। तो बच्चों आप लोग का रिजल्ट आ चुका है, जो आपके जो परीक्षा दिए थे ना उसी का रिजल्ट। कुकुर सिंह तुम्हारा 50 नंबर आया है, तुम पास हो गए हो। और एमसी पटेल तुम्हारा 80 नंबर आया, तुम पूरे स्कूल में टॉप किए हो। और तुम्हारा रोहन तुम्हारा 30 नंबर आया, तुम फेल हो गए हो। एक मास्टर जी आरिफ का नाम है और मेरा 30। क्यों देख के नहीं लिखे थे? तुम चीटिंग करता है सारा स्कीम से। उसका कुछ नहीं जानते, जितना नंबर उसका है उतना मेरा आना चाहिए। आरिफ से पढ़ने में तेज है का तू? अब कुछ भी पूछे यू जवाब निकली हूँ। 5 का पहाड़ा सुना तो मास्टर जी यही नहीं आता, इसके अलावा कुछ और पूछे यू जवाब निकली हूँ। 4 का पहाड़ा सुना तो राउंड अप प्ले। 3 का पहाड़ा सुना तो मास्टर जी ये भी नहीं आता। Good afternoon everyone. Today I will speak on discipline. Discipline make life easy, it builds good habit. Discipline save time. It's control bad habits. Discipline is a make us strong. It's respect teachers. Discipline success of key. It's control bad habits. It's good habits. Discipline is a make of life simple and easy. इसके बाद मैं कुछ कहना चाहूँगी, कुछ शायरी। आज इस मौके पर आपको क्या उपहार दूँ? भर के झोली बस खुशियाँ अपार दूँ। चलो आज इन खुशियों के साथ आपको विदा करता है। मन तो बहुत भारी है, फिर भी कुछ अल्फाज बयां करता है। नाराजगी नहीं है किसी से, ना ही रुसवाई है। हाँ बस दिल में थोड़ी हलचल मची हुई है, हमारी सीनियर्स की जो विदाई है। वाह, ग्रेट स्पीच, बहुत शानदार। कितनी गहरी लाइन बोल रही है। किसी का झगड़ना याद आएगा, किसी का याराना याद आएगा। मैंने तो बस आपको मुस्कुराते हुए देखा है, मुझे तो बस आपका मुस्कुराना याद आएगा। काश मैं वक्त को कह पाती कि अभी तो ठहर जा, मेरे अल्फाज बाकी हैं। सीनियर्स के साथ बीते हुए एहसास बाकी हैं। हम सब साथ थे, ये मेरी खुशनसीबी थी। अब जो बिछड़ रहे हैं वो आपकी गुस्ताखी है। काश मैं वक्त को कह पाती कि अभी तो ठहर जा। That's all, thank you. इस बेटी के लिए जोरदार तालियां। यहाँ के विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक जनाब रहमत अली साहब, प्रधानाचार्य इंजीनियर गुलाब अंसारी साहब, अजमत हुसैन साहब, इंजीनियर नाज हुसैन साहब, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे मजबुल्ला राही साहब, बड़े भाई श्री राजन शुक्ला जी, नेताजी केदार सिंह जी, प्रधान श्री राजेश राय जी सहित सम्मानित मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और सभी स्टूडेंट। इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। यानी
यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह आपको जलना होगा। यानी आपने जो लक्ष्य डिसाइड किया है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसको अगर पाना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसलिए जो लोग जिस भी क्लास में हैं, जिनकी भी परीक्षाएं में हैं, अगर वो अपना दी बेस्ट देना चाहते हैं तो सबसे पहले वे अपनी पढ़ाई और लिखाई पे ध्यान दें। दरअसल यहाँ सबसे मैं देख रहा हूँ छोटे बच्चे ज्यादा हैं, नन्हे मुन्नों का कार्यक्रम है, इसलिए मैं नन्हे मुन्ने बच्चों को साथ, हमारे जो छोटे यूकेजी एलकेजी के बच्चे हैं जिनको ABCD याद है, वे सभी लोग अपना हाथ उठा दीजिए। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। यानी सबको ABCD याद है, इसलिए मैं आप लोगों को एक शिक्षक होने के नाते भी एक मंत्र दे के जा रहा हूँ। ABC में जो C है तो ट्रिपल C आप लोग याद कर लीजिए, यानी C एंड C, यानी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यानी कॉन्फिडेंस, करेज एंड कॉन्सिस्टेंसी। यानी कोई भी काम आप जब शुरू करें, करना चाहें, तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। और दूसरे C का मतलब है करेज, यानी साहस। यानी आपके लक्ष्य की प्राप्ति में अगर कहीं कुछ बाधक बनता हो तो उसको उससे घबराना नहीं है, साहस के साथ उसका क्या करना है, सामना करना है और आगे बढ़ना है। और साथियों, छात्रों, जो सबसे बड़ी चीज है तीसरी, ट्रिपल C, अंतिम C, वो है कंसिस्टेंसी। यानी अपने लक्ष्य के प्रति एकदम कांस्टेंट आपको रहना है। और हमारे जो यहाँ के टीचर्स हैं, इनसे मैं कुछ मुखातिब होना चाहता हूँ। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हमको 1 महीना पहले एक वृद्धा आश्रम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। दुर्भाग्य का लीजिए या सौभाग्य का लीजिए, तो मुझे जान के एक चीजें बड़ी सरप्राइज हुई। मैं चंद लोगों से जब वहाँ मिला तो मैं देखा कि उस वृद्धा आश्रम में ऐसे लोग भी आए हुए थे जो 50,000 रुपए महीने, 60,000 रुपए महीने वे पेंशन भी पाते थे। 20 से 30,000 रुपए वे वृद्धा आश्रम को डोनेट कर दे रहे थे और शेष पैसे अपने पास रख रहे थे। साथियों, तो हमें बड़ा वहाँ जो है एक ग्लानि हुई, एक अफसोस भी हुआ जब मैं उन लोगों को देखा। इसलिए जो हमारे टीचर्स हैं वे अपने छात्रों को अपने परिवार के प्रति संवेदनशील भी बनाइए, ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें और आगे चल के अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। मैं यहाँ के डायरेक्टर अजमत हुसैन साहब को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हुए कि आपने इतने शानदार सफल कार्यक्रम का आयोजन कराया और सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। सर आप मंच पर रहिए। चंद्रजीत यादव सर को अंग वस्त्र देके प्रिंसिपल सर के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। राजन शुक्ला सर को डायरेक्टर सर के द्वारा अंग वस्त्र देके सम्मानित किया जा रहा है। आप सब क्लैपिंग करें स्टूडेंट्स। हुआ है आउट ऑफ 60। Class 9, first position goes to Satyam Yadav. Second position goes to Sanjana Kushwaha. And third position goes to Ayushi. फर्स्ट पोजीशन सत्यम यादव को श्री राजन शुक्ला सर। जब तक बच्चे मंच पर आ रहे हैं तब तक समय को मैं उद्बोधन में लगा दे रहा हूँ। बच्चों को बोला, बच्चे जल्दी आ जाओ बेटा। मैं दे रहा हूँ राजन शुक्ला जी के हवाले। सत्यम यादव, संजना कुशवाहा, आयुषी। फ्रॉम क्लास। वाह, तालियां तेज होनी चाहिए बेटा। इसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में चलता है। क्लैपिंग कीजिए आप सब। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम क्लास 9 सत्यम यादव। सेकंड पोजीशन गोस टू संजना कुशवाहा। संजना आ जाओ। संजना कुशवाहा आ जाओ बेटा। फ्रॉम चंद्रजीत यादव सर। संजना कुशवाहा लास्ट ईयर सेकंड पोजीशन प्राप्त की थी। 819 आउट ऑफ 1000, 85.33%। वाह, रैंक भी बहुत अच्छा है। थर्ड पोजीशन 803 आउट ऑफ 1000 मार्क्स, 83.64%। बहुत अच्छा मार्क्स। लास्ट ईयर पिछले साल ही तीनों कैंडिडेट्स अपनी क्लास में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे रहे। महोदय, आज कनीज फातिमा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान फाजिल नगर क्षेत्र के शानो शौकत रिटायर्ड न्यायाधीश जनाब सगीर साहब मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम लोगों के अभिभावक समाज सेवी डॉक्टर मजीद साहब,
मंच पर उपस्थित इस विद्यालय के संस्थापक, हम लोगों के अभिभावक जनाब रहमत साहब मंच पर उपस्थित, इस कार्यक्रम का हमारे अभिभावक आदरणीय जनाब मजबुल्ला राही साहब, जनाब इंजीनियर नाज साहब, इस विद्यालय के डायरेक्टर, हमारे छोटे भाई और जिनके नेतृत्व में यह विद्यालय दिन दुगुना रात चौगुना शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि कर रहा है, ऐसे हमारे छोटे भाई इंजीनियर अजमत साहब और इस विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य जनाब इंजीनियर गुलाब साहब और सभी सम्मानित इस विद्यालय में पढ़ाने वाले सम्मानित शिक्षक बंधुओं, शिक्षिका बहनों, नौजवान साथियों, पिता तुल्य सम्मानित अभिभावक बंधुओं और इस विद्यालय में पढ़ने वाले देश के भविष्य सभी हमारे छोटे भाई और बहनों। सबसे पहले ये फाजिल नगर का गढ़िया जो नगर पंचायत का क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में आज यह विद्यालय ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं पिछली वर्ष भी मुझे आने का अवसर मिला था और पिछले वर्ष मैं मंच पर देख रहा था जब हमारे भाई बहनें सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे, अपने कला का प्रदर्शन कर रहे थे, तो ऐसा महसूस हो रहा था हम किसी महानगर में बैठे हुए किसी अच्छे कॉन्वेंट विद्यालय में यह कार्यक्रम देख रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को सजाने वाले सभी अपने बहनों को और विद्यालय के शानदार नेतृत्व कर रहे जनाब अजमत साहब को, जिनके नेतृत्व में यह बच्चे निर्भीक होकर अपना कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मुझे मंच के सामने बैठकर इन बच्चों का जब कार्यक्रम देख रहा था, हमारी एक बहन 6वीं क्लास में पढ़ने वाली बहन जब मंच पर इंग्लिश में स्पीच दे रही थी, दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली एक छोटी बेटी पूरे मंच पर घूम कर और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश में स्पीच दे रही थी, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि इस विद्यालय में शिक्षा भी है, संस्कार भी है, संगीत भी है। इन तीनों का समन्वय बनाकर अजमत साहब ने इस विद्यालय को आगे ले जाने का काम किया है। मैं इस मौके पर बधाई देना चाहता हूं भाई अजमत साहब को और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में जो आप आगे बढ़ा रहे हैं, इस आगे बढ़ाने में हम जैसे भाइयों का जहां भी जरूरत महसूस हुआ, आप मुझे याद करिएगा। एक भाई के रूप में आपके साथ खड़ा होकर अपने भविष्य के लिए कुछ करने का मुझे भी अंदर एक जज्बा है, उसे पूरा करने का काम मैं करूंगा। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए बच्चे और गार्जियन अपने बच्चों का कार्यक्रम देखना चाहते हैं। मैं एक बार पुनः यहाँ इस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी सम्मानित बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और एक निवेदन के साथ कि बच्चों, आपके अभिभावकों ने बड़ी ही मेहनत से एक रुपया बिटोर कर 1 रुपया का इंतजाम करके आपका एडमिशन कराया है और आपके जो संस्थापक प्रबंधक हैं जनाब रहमत साहब ने एक सपना देखा है कि हम फाजिल नगर से पुनः जनाब सगीर साहब जैसे न्यायाधीश निकालने का काम करूंगा। जनाब रहमत साहब ने सपना देखा है कि इस विद्यालय से IAS, IPS, PCS निकालने का काम करूंगा। जनाब अजमत साहब ने सपना देखा है कि इस विद्यालय से संस्कारित स्टूडेंट निकालने का काम करूंगा जो समाज में बेहतर संदेश देने का काम करेगा। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सपना देखा है, अभी चंद्रजीत साहब ने कह रहा था कि हम वृद्धा आश्रम गए थे। जितेंद्र प्रजापति जी हमारे सम्मानित साथी हैं, ये लोग वृद्धा आश्रम हर साल जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं। जनाब गुलाम साहब ने सपना देखा है कि इस विद्यालय से पढ़कर निकलने वाले बच्चे अपने गांव में इतनी मेहनत करेंगे, ऐसा संस्कार देंगे, ऐसी व्यवस्था देंगे कि हमारे क्षेत्र की कोई माताएं किसी हमारे बड़े बुजुर्गों को वृद्धाश्रम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनकी सारी सुख सुविधाएं उनके गांव में उपलब्ध कराने का काम यहाँ के बच्चे करेंगे। यह सपना यह विद्यालय देखा है और इस सपने को साकार कौन करेगा? आप करोगे। और कैसे करोगे? जब आप कड़ी मेहनत से और लगन के साथ लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ोगे तो सपने साकार होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस कार्यक्रम के आयोजक भाई अजमत साहब और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय नौजवान साथियों। नेक्स्ट प्रोग्राम अब हम सबके सामने से हमारे ये चीफ गेस्ट नाज हुसैन ऑनरेबल राजन शुक्ला मोमेंटो शीघ्रता रहे ढीलवाही के साथ। वाह वाह
समाज सेवी केदार सिंह से चाहूंगा मैं कि सिर्फ 2 शब्द इन बेटियों को आप आशीर्वाद दीजिए। इस विद्यालय के संस्थापक तथा इस हायर क्षेत्र में विद्या का लक्ष्य लगाने वाले रहमत अली जी इस विद्यालय के प्रबंधक भी हैं तथा पूरे इधर हायर क्षेत्र में कई विद्यालय खोलकर शिक्षा का लक्ष्य लगाए हुए हैं तथा इस कार्यक्रम का अध्यक्षता करे डॉक्टर मजीद साहब। इसके मुख्य अतिथि हमारे बीच विद्वान सगीर अंसारी जी जो एक समय बिहार में जियाजल थे तथा मंचा सिंह, बीपी सिंह जी, असलम प्रधान जी, सोहन तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य गुलाम अंसारी जी, असमत जी डायरेक्टर तथा इस कार्यक्रम के सफल संचालक रहे राही जी तथा विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं तथा इस आगमन के गांव से आए हुए सभी महानुभावों, मैं सबका नाम रखूंगा तो समय खत्म हो जाएगा। बंधुओं मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस ये जो कार्यक्रम हो रहा है मैं 1 घंटा से बैठा हुआ हूँ। मैं कार्यक्रम क्षेत्र में होता है, लोग आते हैं जाते हैं, मैं इस कार्यक्रम में नहीं जाता हूँ। तो रहमत अली जी हमारे मित्र भी है तथा विद्यालय के संस्थापक है, इन्होंने कल कहा 10 साल को 4 बजे विद्यालय पाना है, ऐसा कार्यक्रम है। मैं इनके बातों को काट नहीं सकता हूँ, मुझे जाना पड़ा। बंधुओं, आज के माहौल में एक समय था देश के लोगों ने आजादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक होकर देश को आजाद कराया था कि बंधु आजादी के बाद सबसे अधिक किसी पतन हुआ है वो है विश्वास। देख रहे हैं आज अभी कुछ दिन पहले 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। पहले अगर 26 जनवरी 50 को भारत देश का गणतंत्र दिवस मनाया गया, उससे देश आजाद हो गया 1547 को। बंधुओं, आजादी के बाद देश के विश्वास का लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति लोगों का विश्वास था, कोई आपस में दुराव नहीं था। आजादी के बाद दिन प्रतिदिन विश्वास का पतन होता जा रहा है, बहुत बड़ा समस्या। आजादी के 76 वर्ष होने के बाद भी आज एक दूसरे को विश्वास का पतन हो गया। तो आज के दिन इतना ही चाहूंगा कि छात्र छात्राओं से जो भी है बहुविध क्षेत्र के महानुभाव है, मैं सबसे यही आग्रह करूंगा आप लोग कहीं भी रहे ईमानदारी पूर्वक कर्तव्यों का पालन करें तथा ऐसा काम करें जिससे देश का हित हो, अनित न हो। जहाँ धर्म के नाम पर जो लोग क्षेत्र में, देश में माहौल को गंदा करते हैं, आज इसके में तकलीफ होता है। देश के लिए आजादी के समय हमारे देश के हजारों लोग फांसी के तख्ते पर झूल गए, लाखों लोग जेल में गए, तो जाकर देश आजाद हुआ। अभी मैं कुछ दिन पहले 23 जनवरी को पिछले 42 वर्षों से सुभाष चंद्र बोस की जयंती हाल में हर साल मनाता आ रहा हूँ। इसलिए कहता हूँ कि लोग नए पीढ़ियों को जगाया जाए। देश कितने संघर्षों के बाद आजाद हुआ है। मैं स्वतंत्रता सैनिक के पुत्र होने गया थे, मैं काफी योग्यता के बाद भी हमने अपने जीवन का समस्या बना लिया। यही सोचकर जनता की समस्या को लेकर आए दिन आंदोलन करता रहता हूँ। मैं अंत में हरिनाई जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छे संचालित कर रहे हैं, वो अंचल के अभी संचालक है। अंत में मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं विनती करता हूँ कि रहमत भाई विद्यालय नहीं खोले होते यहाँ पर आने का मौका नहीं मिलता। बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इनसे मेरा 45 वर्षों से रिश्ता है। ऐसे कार्यक्रम बुलाते हैं बहुत साल, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये कम से कम 1 घंटा से कम नहीं बोलते हैं, लेकिन जब मैं बगल में खड़ा हो गया हो तो जान गए हैं कि राही के पास बटम है, 2 ही मिनट में अपनी बात खत्म कर दूं। तन्हाई का जश्न मनाता रहता हो, जब बार तर हो उनको अपनी शेर सुनाता रहता हो, वो भाषण से आग लगाते रहते हैं और मैं गजलों से आग बुझाता रहता हूँ। बहुत शानदार वो गजलों से। तो आइए हम अब आदरणीय आप सभी साथियों का, साथ ही मुख्य अतिथि जज साहब अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर मजीद साहब और आप सभी सम्मानित गार्जियन, गुरुजन और इस विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, मैं आप सभी को इस वार्षिकोत्सव में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। समय की
सीमा को निर्धारित किया गया है संचालक महोदय द्वारा। मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि आज फेयरवेल पार्टी है 12वीं और 10वीं छात्रों की। मैं आप सभी लोगों को यही कहूँगा कि यह विद्यालय परिवार आज जो मंच के माध्यम से गंगा जमुनी तहजीब को प्रमाणित किया है, या ये कहिए कि इस गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने की कोशिश की है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। रहमत साहब, डायरेक्टर इंजीनियर अजमत साहब, इस विद्यालय के सभी अध्यापक अपने अनुभव, क्षमता, योग्यता के माध्यम से आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि के प्रदर्शन करके आपको आगे बढ़ाने की कोशिश किए हैं। उम्मीद की जाती है कि आप सभी आगे बढ़कर इस विद्यालय का, समाज का, अपने परिवार का नाम। Hipsa got 95% last year in class 8. A big round of applause, everyone. We are all the class 8 students. दौड़ के आ जाओ। Second position Simmi Khatun by the hand of Kedar Singh sir. Simmi Khatun. And the third position goes to last year Sabir Ahmad. Son of Sameem Akhtar by the hand of caption 83.7% इनका है। कैमरे में कैद होता हुआ दृश्य। अब आइए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सभी लोग संयुक्त रूप में आ जाएं। सभी चैनल के लोग खड़े हैं अपने कैमरों को लेकर। जज साहब का मोमेंटो। वाह मोमेंटो। जज साहब ये निश्चित रूप में कुछ ही देर के बाद आप बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, क्लैपिंग कीजिए आप सब हमारे स्पेशल चीफ गेस्ट के लिए। यहाँ पे ऑनर किया जा रहा है। अब मैं रहमत अली साहब से गुजारिश करूंगा कि आप पूरे विद्यालय की तरफ से आप माननीय जज साहब। हेलो, आज की गणेश फातिमा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की एनुअल फंक्शन की अध्यक्षता कर रहे, सदारत कर रहे डॉक्टर तलवजी साहब, आज के खुसूसी मेहमान जज साहब विपिन सिंह साहब, हमारे दोस्त पुराने दोस्त केदार सिंह साहब और सारे गार्जियन आए हुए मेरे हस्बैंड अजीज साथी, सारे बच्चों बच्चियों, सबको मेरे तरफ से मैं सबको बधाई, सबको मुबारकबाद देते हुए मैं एक बात तालीम पर कहना चाहता हूँ। तालीम दुनिया की वह कीमती हीरा है कि उसको हासिल करने के बाद दुनिया का कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। ये तालीम का घर है। मैं बच्चों से निवेदन अर्ज करना चाहता हूँ कि आप अपने समय से आकर तालीम हासिल करिए। कोई एक प्रधानमंत्री बन जाएगा तो सिर्फ 5 साल तक रहेगा, इसलिए एक डॉक्टर बन जाएगा तो 100 साल तक मरीजों को, वकील बन जाएगा 100 साल तक वकालत करेगा। तालीम दुनिया की सबसे कीमती चीज है, उसको हासिल करो, चाहे उसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़ी हो। क्योंकि लंबी चौड़ी बड़ी बात है कि मैं सब शॉर्ट फॉर्म में अपनी एक मिनट के लिए अपनी बात कर दिया है। मुल्क हमारा बड़ी खराब दौर से गुजर रहा है, क्योंकि इस वक्त मुफ्त की बात हो रही है, तालीम की बात हो रही है। रुपया हमारा इतना सस्ता हो गया है कि दुनिया में हम अपनी ताकत बनाने के लिए अमेरिका से सामान खरीदने जाएंगे तो मेरा रुपया खत्म हो जाएगा। रुपये के एक डॉलर के 100 रुपया हो चुका है। हालत मेरा बहुत ही खराब है। भारत की ताकत की पोजीशन यह है कि अपनी मर्जी से अपनी सामान नहीं खरीद सकता है। बड़ी मुश्किल की हालात है, हम अपने मर्जी से अपने सामान को खरीद नहीं सकते हैं। दुनिया की बैरून की ताकत कह रहा है मुझसे खरीदो, उससे खरीदो। मेरे पास इज्जत नहीं है कि मैं कह दूं कि सामान मैं अपनी मर्जी से 1971 में जब जंग हुआ था, 1971 में जब भारत पाकिस्तान की जंग हुई थी, हेलो, मैं सभी गार्जियन से कहना चाहता हूँ 1971 में भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी, तो पाकिस्तान से जबरदस्त जंग के बाद
अमेरिका ने 7वां बेड़ा पाकिस्तान को, भारत को कमजोर करने के लिए भेजा, भारत को हराने के लिए पाकिस्तान के पक्ष में दिया, लेकिन वही रूस था जो 8वां बेड़ा देकर हमारा फुला दिलाया। आज उस रूस से तेल देने के लिए मना किया जा रहा है और भारत ऐसे नहीं है कहते कि मैं अपनी मर्जी से तय कर दूंगा। इसलिए हम बच्चों से अपील करना चाहते हैं, पढ़कर मजबूत होने की जरूरत है, इस देश की रक्षा करने की जरूरत है, इस देश की हिफाजत करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ में जज साहब को स्वागत करते हुए अपनी बात करता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज। मैं इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, जो सब हैं, उन्हें अंग वस्त्र देंगे और मोमेंटो देंगे यादगार के लिए उन्हें स्टेज पर सम्मानित किया जा रहा है। कैमरामैन चारों तरफ से अपने कैमरे में इस तस्वीर को कैद कर रहे हैं। ये खुशनसीबी है और निश्चित रूप में जब ये बोलते हैं तो अब्दुल मजीद साहब को भी डायरेक्टर साहब अंग वस्त्र देंगे, मोमेंटो देंगे, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और रहमत साहब मुस्कुराते हुए अंदाज में मोमेंटो प्रदान कर रहे हैं। ये स्टाइल है इनकी अलग, ये निराली अंदाज से। देखो बच्चे जब पैदा हो अब बोलने तभी से कहा जाए पढ़ के क्या बनोगे, तो मैंने अपने घर में डाला कान में पहले डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। अपने मुंह से तो नहीं कहना चाहिए, परिस्थिति है तो कह रहा हूँ। मेरे 7 बच्चे हैं, 6 बेटियां और 1 बेटा, और सारे डॉक्टर हैं। मेरे पास पैसे भी नहीं, मेरे पास पैसे कीजिए आप साहब, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। मेरे पास तब भी पैसे नहीं थे, अब भी पैसे नहीं है, लेकिन अब सब धीरे धीरे पीजी भी हो रहा है। सिर्फ यूजी मतलब मेडिकल की डिग्री से नहीं, पीजी भी कर रहे हैं, एमडी एमएस और सब फ्री होता चला जा रहा है। तो जो मैंने नियम अपनाया बचपना में कि कान में डालते रहे पढ़ के क्या बनोगे, डॉक्टर बनेंगे। तो आपका बच्चा जब 10 साल 15 साल 20 साल तक कोई पूछे बाबू पढ़ के क्या पढ़ोगे, बनोगे, कलेक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। अब 12 साल 15 साल 18 साल और रटता रहेगा तो फिर जब खिसकेगा वहां से तो उसको शर्म आएगा। कहा कि यार इतने साल में लोगों से कहता रहा, नातों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, यारों से डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है, अब मैं कहाँ पक्के जाऊँ। लोग कहेंगे झूठा है, इतनी उम्र तक ये बच्चा कहता रहा। इसका ये इतना असर हुआ कि हम 100% अचीवमेंट हमको है, टाइम नहीं है। ये तो क्लास की चीजें हैं, भाषण की चीजें नहीं है। आप सबसे कहूँगा कि बच्चों को भेज रहे हैं 20 साल 25 साल तक कॉलेज, नर्सरी से लेकर बड़े बड़े कॉलेज तक, तो आप लक्ष्य दे के भेजिए। चौराहे पे बच्चों भेजते हैं तो लक्ष्य देते हैं बिस्किट लेके आना है। अब 20 साल 25 साल की उम्र तक अब लक्ष्य नहीं देंगे। डिग्री कॉलेज कुछ नहीं, अगर खड़ा होकर जमाने में मैंने 10 बच्चों से पूछा किस क्लास में पढ़ते हो, BA में बताए, पढ़ के क्या बनना है, सोचल जाइए। तो ये सोचल जाइए से पढ़ाई हुई तो सोचते रह जाइए, लक्ष्य बना के पढ़िए। बस यही एक नुस्खा दे के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सब अगर ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो हेलो, इस स्कूल के प्रबंधक, इस स्कूल के प्रिंसिपल, तमाम टीचर्स, करीब डूबने ही वाला है। काफी वक्त से आप लोग बैठे हुए हैं, मैं समझ रहा हूँ। असलम प्रधान सर आप रुक जाएं, सोहम के असलम प्रधान सर, सोहम से असलम प्रधान सर। ये बहुत कुछ कहने का वक्त नहीं है कि कुछ कहा जाए, कुछ सुना जाए, लेकिन फिर भी मुझे आदेशित किया गया है कि मैं आऊं मंच पे और थोड़ी सी बात करूं आपसे। देखिए, गार्जियंस के लिए मैं थोड़ी सी बात ये कहना चाहूंगा कि एक काम आप जरूर करें मेरी राय से। वो ये काम है कि ये मोबाइल का दौर है, बच्चे मोबाइल में ज्यादा बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। हर गार्जियन व्यस्त रहता है और बच्चों को मोबाइल देख के गार्जियन छोड़ देता है कि जाओ तुम अपने काम में व्यस्त हो जाओ, हम अपने काम में व्यस्त हो जाएं। ऐसे में मेरी जो राय है वो ये है कि औरतें जो घर की मालकिन होती हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो शाम का जो खाना है, जो रात का खाना है, रात के खाना को सूरज डूबने से पहले बना लें।
और रात का खाना जब सुबह सूरज डूबने से शाम को बन जाएगा, सूरज डूबने से पहले, तो सूरज डूबने के बाद अपने बच्चों को लेके वो बैठ जाएंगी और बच्चों के साथ आप 9 बजे तक कम से कम बैठिए और हर हाल में उनको 4 बजे जगा दीजिए। अगर 4 बजे जगने की आदत बच्चों में पड़ जाएगी, मैं पिछली बार भी आया था यहाँ तो मैं ये बात कह के गया था कि अगर आप चाहते हैं दुनिया से आगे निकलना, आप चाहते हैं कि आपकी उम्र बढ़ जाए, आपने सुबह 4 बजे जगने की आदत डाल लिया तो आपके बच्चों में, आपकी आने वाली नस्लों में भी ये आदत पड़ जाएगी और वो दुनिया से बहुत आगे निकल जाएंगे। ये बहुत बड़ा मंत्र है, ये बहुत बड़ा सूत्र है। आप इस सूत्र को आजमा के देखिए। शाम के वक्त सूरज डूबने के बाद अपने बच्चों को कभी भी आप तन्हाई में पढ़ने के लिए मत छोड़िए। अगर आप शाम के बाद किचन में रहेंगी तो बच्चे मोबाइल में रहेंगे, बच्चे आपस में लड़ाई करेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे और अपना टास्क जो होमवर्क उनको मिला है उसको वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप ऐसा करेंगी तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ये दुनिया बहुत तेजी से चल रही है। इस मौके पर 1970 की एक फिल्म है जिसको सफर का नाम दिया गया था और मन्ना डे की आवाज में एक गीत उसमें फिल्माया गया था। मैं उसको आपको सुना के और फिर थोड़ी सी अपनी बात को आगे बढ़ा के अपनी बात को खत्म करूंगा। आइए मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ गुनगुनाइए। चलिए देखिए कैसे आप लोग मेरा साथ देते हैं। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका गिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बहे जाए किनारा, बड़ी ही तेजी है समय की धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। अगर कहीं ठहरे तो ठहरे नहीं रहेंगे, बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए ठहरने की जरूरत नहीं है, चिंता की जरूरत नहीं है, जरूरत है चिंतन की। मैं समझ रहा हूं कि माहौल बोलने का नहीं है, सुनने का नहीं है, लोग काफी देर से बैठे हुए हैं। मैं आखिर में अपनी बात को इस KFG स्कूल के लिए लिखे गए तराने के साथ खत्म करूंगा। KFG स्कूल के प्रबंधक के प्रिंसिपल साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ये तराना जो आपके स्कूल के लिए लिखा गया है अगर सूट करे तो अपने स्कूल के तराने में इसको शामिल करेंगे। आइए मेरे साथ इस तराने को सुनिए और मेरे साथ गुनगुनाइए। हम सुबह सुबह जग जाएंगे और पढ़ने में लग जाएंगे। ध्यान देंगे आप सब। हम सुबह सुबह जग जाएंगे और पढ़ने में लग जाएंगे। हम KFG में पढ़ते हैं ये दुनिया को बतलाएंगे। हम सुबह सुबह जग जाएंगे और पढ़ने में लग जाएंगे। हम KFG में पढ़ते हैं ये दुनिया को बतलाएंगे। अच्छा होगा जब काम मेरा, अच्छा होगा जब काम मेरा, इतिहास में होगा नाम मेरा। अच्छा होगा जब काम मेरा, इतिहास में होगा नाम मेरा। इंसान सभी भाई भाई, बस
सुना है पैगाम मेरा, हम मेहनत से सारी धरती को एक दिन स्वर्ग बनाएंगे। हम सुबह सुबह जग जाएंगे और पढ़ने में लग जाएंगे। हम KFG में पढ़ते हैं, ये दुनिया को बतलाएंगे। मतलब जाना है सितारों से आगे, हम सुबह सवेरे हैं जागे। जाना है सितारों से आगे, हम सुबह सवेरे हैं जागे। है मील के पत्थर भी मुझसे मिलने आते भागे भागे। है मील के पत्थर भी मुझसे मिलने आते भागे भागे। है साज नया अंदाज नया, हम नया तराना गाएंगे। हम सुबह सुबह जग जाएंगे और पढ़ने में लग जाएंगे। हम KFG में पढ़ते हैं, ये दुनिया को बतलाएंगे। हम कभी नहीं थकने वाले, हम सुबह सुबह जगने वाले। मेहनत है सफलता की कुंजी, हम काम में है लगने वाले। हम मेहनत कश हैं, मेहनत कश, हम मेहनत कश हैं, मेहनत कश। पत्थर पर घास उगाएंगे, हम सुबह सुबह जग जाएंगे और पढ़ने में लग जाएंगे। हम KFG में पढ़ते हैं, ये दुनिया को बतलाएंगे। हम सुबह सुबह जग जाएंगे और पढ़ने में लग जाएंगे। जय जवान। Big round of applause. Position Nur Fatima. वाह वाह। All over school. बेटा तुम्हारा नाम क्या है? Second position goes to Nusrat Jahan. तुम्हारा नाम क्या है बेटा? All over school chopper. नुसरत जहां। ताली बजा दो बजा। नुसरत जहां। तुम्हारा नाम बेटा? फातिमा। नूर फातिमा। वाह, तालियां तेज होनी चाहिए। तुम्हारा नाम बेटा? हिफ्सा परवीन। हिफ्सा परवीन। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट नेम। Second position Hifsa Parveen, daughter of Nazir Ali. Third position, total overall 95.54% रहा इनका। जी मैं जी राजू भाई नाम है ना? राजू भाई। राजू ठीक 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 ठीक। जज साहब के हाथों से ये बहुत मेहनत किया इन लोगों ने। जी अंकिता पांडे मैम। रघुवीर ट्रेडर। ये चारों हमारी फीमेल स्टाफ पिछले 15 दिनों में अपने मेहनत और मुशक्कत के साथ इस प्रोग्राम का रूपरेखा तैयार किया था। इसके लिए रघुवीर ट्रेडर्स की तरफ से इनको स्पेशल गिफ्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। वाह 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 वाह। कविता यादव में शिबू राय मैम। जी कितना अच्छा लग रहा है कि सभी सम्मानित शिक्षिका को सम्मानित किया जा रहा है आज एनुअल फंक्शन के इस अवसर पे। कनीज फातिमा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल एनुअल फंक्शन और गुलाम मुर्तजा सर, गुलाम मुर्तजा जिनका नाम वही मुर्तजा है। आ जाइए। इसके बाद मुर्तजा सर का नंबर है। हाँ हो गया। वो तो सेकंडों में खींच लेने वाली लोग हैं, रोजाना का अनुभव है। सर लोग कहाँ हैं? हाँ आ जाइए सर। कैब सर आज पूरे जो चैनल पे चल रहा है
ये बंदे को मैं तारीफ करता हूँ। और अभी थोड़ी देर में मेला देखिएगा, सबके मोबाइल पे आ जाएगा। वाह, पूरी टीम है इनकी लगी हुई देखिएगा। हेलो सर, रानी मैम, रीमा मैम और जैनब मैम। वाह वाह, इसका मतलब लग रहा है ताली बजाओ बेटा, जोरदार ताली बजाओ तो। हाँ, क्या बात है। जास्मीन मैम, रीना मैम का नाम आया है तो बच्चे बदलू उत्सुक है। वाह सर, बोले क्या बात है। वसीम सर आ जाइए। वाह यार, ये भी बच्चों के बड़े प्यारे हैं। वाह, नाज हुसैन सर, इंजीनियर नाज हुसैन सर। वाह वाह, क्या बात है। अब पता चल रहा है कितने कैरेट के कौन हैं। अब बारी आती है, देखिए बारी। जो गुलाब है वो गुलाब ही रहेगा। वाह वाह, चेहरे पे गुलाब जैसा मुस्कान भी है। ताली बजा दो बेटा। अब मैं चाहूंगा सर, डायरेक्टर सर को एक मोमेंटो दीजिए। इंजीनियर साहब सम्मानित करेंगे डायरेक्टर सर को। जी दीजिए, अंगवस्त्र दीजिए। नसीब अंग, वहां से शाल निकालो बेटा, शाल निकालो। हाँ जल्दी करो, हाँ जल्दी करो। डायरेक्टर अगर सम्मानित होता है किसी जज के हाथों से तो निश्चित रूप में अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। आप सब क्लैपिंग करते रहें। प्रधान जी को भी सम्मानित किया गया। अगले क्रम में नसीम आलम सर, सभासद गढ़ैया। अगले क्रम में अनुज शर्मा सर, शिक्षक अनुज शर्मा सर। उसके अगले क्रम में नौशाद अंसारी सर, जो इस स्कूल के फाउंडर हैं। नौशाद अंसारी सर, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द नौशाद अंसारी। नौशाद अंसारी सर। दानिश आलम सर, दानिश अंसारी सर, देश दीपक चौहान सर, जलाउद्दीन अंसारी सर, सलाउद्दीन अंसारी सर। खान आ जाए। इन सभी हमारे चीफ गेस्ट को अंग वस्त्र देके स्कूल की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। आप सब स्टूडेंट्स क्लैपिंग करते रहे। नौशाद सर है आप सबके सामने। और लास्ट में हमारे इस स्कूल के सेकेंड खूब मजबूती के साथ हम सबका साथ देने वाले हमारे नसीम भाई ऊपर। वाह वाह, जल्दी कीजिए। हाँ, और लास्ट साहिब भाई सलाउद्दीन साहब को प्रबंधक जी अंग वस्त्र देके सम्मानित कर रहे हैं। वाह। और लास्ट सद्दाम हुसैन भाई, जो जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं। सद्दाम हुसैन। वाह। अगले क्रम में नसीम भाई। लग रहा है गोरखपुर गीता से आया। हमारे देश दीपक चौहान भाई, मिलन मैरिज हॉल के डायरेक्टर। मिलन मैरिज हॉल के सद्दाम भाई। और इसी क्रम में हमारे नसीम भाई, शाहिद भाई। वाह वाह, ये प्यार है बेटा, जोरदार ताली। ये सभी हमारे चीफ गेस्ट को अंग वस्त्र देके स्कूल की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। कार्यक्रम अभी होना है, बच्चों के कुछ कार्यक्रम शेष है, सभी प्रोग्राम होंगे। और अंत में डायरेक्टर सर को प्रिंसिपल सर के द्वारा अंग वस्त्र देके सम्मानित किया जा रहा है। अनवर अंसारी सर। देखिए जो इस कार्यक्रम में जो हमारे चैनल के रिपोर्टर हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि मंच पर आ जाए। जो हमारे स्कूल में अपने YouTube चैनल को चलाने वाले प्रेजेंट में जो आपका लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप सब अपने टीम मेंबर्स के साथ ऊपर आ जाए। सरफराज मीर साहब आप यहाँ आ जाए। मैं रामत भाई से गुजारिश करूंगा। बबलू भाई मनीर आलम, शिक्षक मदरसा इस्लामिया मकतब आलादपुर, आप आ जाएं। मनीर आलम जी। एबरार आलम सोनू भाई, आप आ जाएं।
हाँ अब आप आ जाए, मोबाइल दूसरे को दे दें। हाँ हाँ रमन भाई इनको भी अंग वस्त्र दे से सम्मानित करें जी। ये आपके स्कूल में जो अपने इस लाइव प्रोग्राम को रिकॉर्ड स्पीकिंग के फाउंडर ऑक्सफोर्ड सर आ ही गए, ज्ञानेश्वर सर, यही तो है, यही है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्पीकिंग के फाउंडर ज्ञानेश्वर सर, यही है तो है ज्ञानेश्वर जी आइए, मैं आपको पहचान। वाह वाह नाज हुसैन, अगला प्रोग्राम की तैयार रहिएगा। बिल्कुल तैयार है सर। इस स्कूल में आए हुए सभी गार्जियंस हमारे इस मैसेज को ध्यान से सुनेंगे। इस पूरे स्कूल कैंपस में हमने इस बार से अपना एक नया टैगलाइन और 99% बच्चों का 99। तालियां तेज कर दो बेटा, तालियां तेज कर दो, बड़ी खुशी की बात है। बेस्ट पेरेंट, वाह वाह बेस्ट पेरेंट माँ के नाम से ताली होनी चाहिए बेटा, जोरदार ताली बजनी चाहिए। वाह वाह बहुत बहुत धन्यवाद। सपना मैम ने पूरे इस ग्राउंड में जज साहब की मौजूदगी में, इतने लोगों की मौजूदगी में, इतने बड़े मंच में, मैं चाहूंगा डायरेक्टर सर, वाह क्लास 10th वाले स्टूडेंट आप सब एक साथ आ जाएं। शेष प्रोग्राम कराइए, बहुत जरूरी है। हट रे मनीष हट ला। राही जी को अंग वस्त्र देके इनको सम्मानित किया जा रहा है और एक मोमेंटो डायरेक्टर सर के द्वारा दिया जा रहा है। जज साहब
सपना मैम, सपना मैम, हेलो हेलो, हेलो हेलो, सपना मैम, अंकिता पांडे, हेलो हेलो, अंकिता पांडे मैम, अंकिता पांडे मैम, समीर और आसियाना के द्वारा अंकिता पांडे मैम को कैब सर को, आयुष सलमा के द्वारा मजीद सर मार रहा है रंजीत और सबू के द्वारा मानवेन सर, राहुल और साहिल के द्वारा and last myself नाज हुसैन। ऑडियंस, अब जो मैं यहाँ कहने जा रही हूँ इससे किसी को पर्सनली हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। सो प्लीज इसको जस्ट मेरे इमोशंस की तरफ फील कीजिएगा और जो भी हंसी मजाक हो उसे मजाक नहीं लीजिएगा। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर मैम, respected teachers, parents and my all dear brothers and sisters. I am Sujana Kushwaha. I am a student of class 10. Today I would like to express my feelings on the beautiful occasion on farewell party. So without losing us time and let's all start. बचपन का दिन, जी हाँ हमारा स्कूल जहाँ जाने का तो डर लगता था पर आज यहाँ से जाने का मन नहीं करता। बचपन के दिन, क्लास 10 की जन्नत जहाँ जाने को हर कोई रखता है मन्नत। याद है वो स्कूल का पहला दिन जब मम्मा ने अपने हाथों से बालों को संवारा था और पापा ने चॉकलेट का लालच देकर घर से स्कूल छोड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा आज से 5 साल बाद वो फर्स्ट क्लास की पहली स्पीच से शुरुआत करूं या आज इस नई शुरुआत से शुरू करूं। पर यहाँ जो आज खत्म हो रहा है ना वो हर एक पल हमारा था, ना आपका था ना मेरा था, वो हर एक पल हमारा था। आज वो दिन आ गया है जिसका आना हमें रुला गया है। कर तो कब से रहे थे हम इस दिन की तैयारी, कर तो कब से रहे थे हम इस दिन की तैयारी, पर छूट रही है आज स्कूल से यारी। आज वक्त को रोकने का जी चाहता है, आज वक्त को रोकने का जी चाहता है, कुछ पीछे छूटने का डर लगता है। जल्द ही हम इस दिन को खो देंगे, जाते जाते हम स्कूल से रो देंगे। बच्चे बनके तो आए थे हम सब, बच्चे बनके तो आए थे हम सब, एक दूसरे से कितने बनाए थे हम सब। देखते ही देखते एक हो गए, हंसने के बहाने अनेक हो गए। वो बचपन जो स्कूल ग्राउंड में बीते थे वो हर एक पल, वो हर एक सफर हमारा था, ना आपका था ना हमारा था, वो हर एक पल हमारा था। क्योंकि अब हम स्कूल से दूर होने वाले हैं, हम मिस करने वाले हैं हमारे प्यारे डायरेक्टर सर और हमारी सबसे प्यारी डायरेक्टर मैम जो हम लोगों के
मिस करेंगे हमारे क्लास टीचर मिस करेंगे उन्हें जो हमें क्लास में उदास से बैठे रहते थे, वही हमारे क्लास टीचर कैफ सर हमें हंसाया करते थे। और कभी कभी हम जो सवारते थे तो आए हाय हाय क्या लाजवाब लगते थे। मिस करेंगे वो जो हमारे साथ हंसते खेलते बात करते थे, वही हमारे मैथमेटिक्स के टीचर मानवेंद्र सर थे। मिस करेंगे वो जो अपने क्लास में हम उनको परेशान किया करते थे, वही हमारी बायो की टीचर अंकिता मैम थी, जो गुस्से में भी प्यार से बोला करती थी, कॉपी कंप्लीट करो नालायको। मिस करेंगे वो की है सपनों की रानी और हमें सुनाती हिंदी की कहानी। मिस करेंगे आईटी के टीचर वसीम सर को, जो हम लोगों के साथ हंसते हंसाते रहते थे और हर एक अपनी बात हम लोगों से शेयर करते थे। सोचा नहीं था ये सफर इतना जल्दी खत्म हो जाएगा। क्लास 6 से क्लास 10 की यारी कुछ यूं छूट जाएगा। जिन बातों पर दिल दुखता था, आज उन्हीं पर हंसी आ रही है। ना जाने इन पलों की याद इतना क्यों सता रही है। आज लगता है क्या पीछे रह गया, कहीं कहीं बातें रह गई, कहीं ना कहने वाली यादें रह गई। अब कौन हमें क्लास 10th वाला कह के बुलाएगा, अब कौन हमें क्लास 10th वाला कह के बुलाएगा।